त्रयो त्रयोचत्वारिंशत् अधिक चतुष्शत्। उससे आगे। 4 4 4 4। अस्तु। तो गतसत्रे गुपु धातु आरब्धवान् आरब्धः अस्माभिः गुप गुपु धातु अथवा कित कित धातु। आम कित धातु कित निवासे रोगापनयने संशये च तर्हि गुप्तिच् किद्भ्यः सन् सूत्रमासीत् मेट् स्वार्थे सनि इति सूत्रं पठितम्। तर्हि अद्य ईश समीपात् विष्णुजनात् अनिट् सन् कपिलः। अनिट् sun is Kapila when it comes after Vishnu Jana preceded by an Isha. Isha Samipa Vishnu Janadhanit San Kapilah. Isha Cha Anit Sun is also Kapila when it comes after an Isha. Purva Dhatu Vat Sanaha Parapadadi. Sananta Dhatus take Parapada endings and so on according to the original Dhatu from which they are formed. Thus we get Vichikitsati Dharmam. He doubts dharma or chikitsati roginam, he cures the sick person. तो कित धातु सन इति सूत्रम सन इति प्रत्ययम गुप्तिज किद्भ्यः सन इति सूत्रात् आगच्छति। तो तर्हि धातुर्निर्वचनम् अधोक्षर सन्नङ् यङ्क्षु अत्र here there can be a question that why can't we apply it in between kit and sun? No, we can apply it ram dhatuke because sun is ram dhatuke. सन इति राम धातुकम् तर्हि इट् कथं न आगतम् उत्तरमस्ति नेट् स्वार्थे सनि नेट् स्वार्थे सनि so when we are using sun in swartha prayoga then we don't use or imply it and when we don't use it then what is that sutra 444 isha samipa vishnu janadana it san kapilah such sun is considered kapila if it comes after a dhatu which is ending with Vishnu Jana and which is preceded by Isha. Isha Samipa Vishnu Jana Anit San Kapila. First of all, let's Swarthi Sani. So sun is there, so no it. And when such sun is there, so that sun is considered Kapila if it comes after a dhatu ending with Vishnu Jana, and that Vishnu Jana should be preceded by Isha. Or sun also becomes Kapila if it comes after a dhatu which ends in Isha. So in this case, 444 is applied. Isha Samipa Vishnu Janatan, Anitsan Kapilah. And then Dhatur Dirvachanam Adhokshara Sannang Yangshu Sarveshwara Parentasya Adi Bhagasya Anasya Dirvachanam. So we do the reduplication key. Sun is also there as one of the nimittas for reduplication. Dhatur Dirvachanam Adhokshara Sannang Yangshu. Sun is there. So Kavarga Narasya Chavargaha Chikitsa. The chikitsa is a new dhatu by bhusanantatya dhatavah. Chikitsa is a new dhatu by bhusanantatya dhatavah. So chikitsa plus the shav krishna dhatu ke arama arama hara ayora vishnu padante. So we delete the and we get chikitsati. Chikitsati. Chikitsatah chikitsanti ityadi. Okay. अस्तु। प्रभु जी,
एतस्मिन् आङ्ग्लभाषे किमर्थं एतानि शब्दानि चिकित्सति, चिकित्सतः, चिकित्सन्ति? तो चिकित्सति इति सः वैद्यः रोगं चिकित्सति। वैद्यं diagnosis. रोगं चिकित्सति। क्योर। वैद्यः, या वैद्यः रोगं चिकित्सति, द डॉक्टर इज क्योरिंग द डिजीज। एंड प्रभु जी, ये अर्थ क्या लेता है, ये वाला सन प्रत्यय? ये हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, वृत्ति में या कहीं। कन्वेज द धातु's own meaning. ओके। हाँ हाँ, हमने पढ़ा था ये। व्हाट? ओके, फिर तो इसी तरह से इसके रूप चलेंगे। देन ऋत घृणायाम, टू हेट। So this is a special kind of dhatu called sotra dhatu. Anyhow, so it's ritaghrinayam parapad dhatu. So riter yang, yang is applied after the sotra dhatu rita. And atmapada endings are used because yang has the indicator letter ng. What was that sutra? Atmapadani atmapadebhyo ngitascha. हिस्ट्री। Atmapadani atmapadebhyo ngitascha in the beginning. यस। So because yang has ng as the indicatory letter, आत्मा पता। so by that one we apply atmapada endings. So rita plus yang, ritiya, and te, shap. So ritiyate, ritiyate. And then, so this is like kind of, you can say this is now atmapadi dhatu after applying yang. And we are doing kartri and karmani using the atmapada pratyas only. This is the kartri, active, using atmapada pratyay. And then comes the karmani, using atmapada pratyay. So rita dhatu, te. So sutra says riter yang. Aya yang commanding. What was that sutra? 394. आया Yeah, ईयं का meaning? aya yang commanding cha ram dhatu ke tuva. So when ram dhatu ka pratyay is there, then these agamas are optional. Aya, yang, and ning after coming dhatu. So yang is optional when ram dhatu ka is there. So when yang is inserted, ritiya, yak. So ara, how do we delete the here? 313, Nadia Sarveshwara. What is the sutra before 394? 393. राम हरो राम धातु के। Ram haro ram dhatu ke. So by that, is deleted and we get ritiyate. And once when yang is not inserted, then rityate. So these two forms in karmani. They are also showing, Jiva Goswami is also showing two forms for adhokshara, because adhokshara pratyas are also ram dhatukas. So when once yang is applied, so ritiya plus am, because ritiya has aneka sarveshwara, right? So aneka sarveshwara kasi bhi hum am adhokshara. Am is inserted. So ritiya masa or ritiyam babuva, ritiyam chakara, whatever. And once yang is not inserted, so rita nal, we do govinda. Then sthanivat durachanam, re is reduplicated. Narari ramasya aramaha, naradira ramasya trivikramaha, tasman nod dvivishnu jane dhatu. Na is inserted. So we get anartha. Naradira ramasya trivikramaha and tasman nod dvivishnu jane dhatu. Then we insert it if there is a Narayana following which has two Vishnu janas in it. So here we have two Vishnu janas, Ra and the Rama.
नहीं प्रभु जी, समझ नहीं लगा। तस्मा नुट द्वि विष्णु जना धातौ। आदराम, sorry, Naradena Ramasya Trivikrama. That is first step. And Tasma means after making Trivikrama, then we insert note. ओके। 361, 362. ओके, गॉट इट प्रभु जी। And yeah, and with great joy, we finally complete the biggest chunk, I think, of the book. We can say the whole Harinama Vrityakand, the Bhuadi Parapada Prakriya, around like 200 sutras. Like, so out of 1200 sutras or 1280 sutras in this Madhyama version, these were the 200 sutras, the Bhuadi Parapada Prakriya. So, quite an achievement. So, Bhuadi Parapada Prakriya is done. हरी हरी। Then, Bhuadi Atmapada Prakriya. So, basically, what Jiva Goswami has done here is, first of all, we have the 10 ganas: Bhuadi, Adadi, Juhotyadi, Divadi, Swadi, Dudadi, Rudhadi, Tanadi, Kriradi, Churadi. But in Bhuadi, he has made or divided into three sections, you can say. So first was Parapada section, which we did. Second is the Atmapada section, which we will do. And the third one is Ubhayapadi or Mishra, actually Mishrapadi. In the third section, Jiva Goswami will merge or will show examples of Parapada, Pratyaya Dhatus, Atmapada Dhatus, and also Ubhayapadi Dhatus. But from second Gana, he will just club everything into, one section. He won't do three sections for each. So Bhadi Atmapada Prakriya. So the first dhatu is Edha Vriddho. Edha Vriddho. Ed plus Te. I think I already mentioned that for Atmapada dhatus, for both Kartari and Karmani Prayoga, we use Atmapada Pratyas only. Right? I mentioned. यस प्रभु जी, यस। Like, for example, love, let's say love is a dhatu, which means to obtain. And now it's consider it to be an Atmapadi dhatu. So let's say Te. This is Achyuta Atmapada 1-1. Now, if I want to do Kartari Prayog, then I will simply insert Shab and it will become लभते। Labhate Chatatha Kaman, Labhate. And if I want to do Karmani Prayog, so we will insert Yak and it will be Labhyate. So this the first one is Kartari and the second one is Karmani. So we use only the Atma the Pratyas to show both Kartari and Karmani Prayogas. Yeah. So Ed plus Te. So Ed means Vriddho, to increase. Edate. So Ed plus Te, Shab Krishna Dhatu ke Kartari and Edate. That's all. Edate. Then Tij Nishane Shamayamcha. Tij Nishane Shamayamcha. So if you are into AI and all, maybe you can also, try. So I think you already saw this thing which I shared earlier. Did you? यस प्रभु You जी। know what? Yeah, one interesting thing is, like, if you click on any word, so it shows all the applicable sutras for that particular word. And then if you go to the table, and it will also show, okay, which sutra is applied. Like,
ये where yeah, this is the good feature that devotee has done. Like I'm on 6.3. My cursor is on 6.3. So it is showing me, okay, हम्म, these two sutras are applied there. हम्म। So, if it can be done for dhatus also, would be nice. प्रभु जी, And if कः कः भक्तः कृत कृत so, कृत कृतवान्? so सः भक्तः सिलिकॉन वैली देशात् स्थानात् अस्ति. अच्छा। आम् आम्. So, he has actually done. He is actually doing all the steps which he himself is reading or studying. You know. पर वो तो आगे नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, वो पीछे थे. उन्होंने एक्चुअली वो भी पीछे ही है, पर उन्होंने फिर भी चैप्टर 2 पूरा कर ही लिया ऑलमोस्ट. अच्छा। हाँ, तो उन्होंने चैप्टर 2 अच्छे से किया है. कहीं कहीं पे उन्होंने अभी सूत्र लगाए नहीं है, शायद से वो बाद में लगाएंगे. हम्म, जैसे देखिए, प्रतीक्षा में उन्होंने लगाए अचो राम हरो भगवती हम्म। पूर्वस्य, ये सब. अगर इस तरह से धातु का भी हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा. Yes, bro, we are waiting for Dhatus. यू आर वेटिंग फॉर दैट प्रभु टू स्टडी धातु सून. एंड On the देखो यहाँ first पर day इन्होंने पे इन्होंने ऐसे लिखा भी है, फ्रॉम पीडीएफ पेज टू 42. रेफरेंसेस भी लिखे हैं कुछ हम्म। कुछ. नहीं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, इफ यू आर इनटू एआई एंड ऑल दीस थिंग्स, हम ना, टेक्निकल थिंग्स, अहम नास्ति, अहम नास्ति। then you can also. Anyhow, but yeah, this is really good. कृतम जीवन प्रभु जी, कृतम, कृतम जीवन। Yeah, he has used AI for, doing all these things. Anyhow, technical stuff. Like they have that Ashtadhyayi website, if you have seen. आम आम। अष्ट तो उसमें वो दिखाते हैं ना साइड में, वो दिखाते हैं। कौन कौन से सूत्र लगे हैं. तो हमारा अगर इस तरह से होगा तो ये कुछ और मॉडर्न अप्रोच है हमारी वाली. दिस इज मोर मॉडर्न अप्रोच, आई बिलीव. और कुछ Anyhow, Krishna will inspire. I'm just waiting for Krishna to inspire. ठीक है. तो अ, तिज निशाने क्षमायाम च. तो तिज प्लस ते, आत्मपदी धातु शब्द तेजते. Okay, the word tikshna, the word tikshna, sharp, comes from tij dhatu. हम्म। Tikshna. Yeah, it must come from this dhatu. Wait, let me see. रोहित, कर्ण कर्ण कृदंत प्रत्यय लगा ना फिर उसमें? नहीं नहीं, उसमें त प्रत्यय होना चाहिए. That looks like a निपात. One second. हाँ, तो देखिए, तीक्ष्ण में इट इज द तिज धातु, द सेम धातु. हम्म, एंड इट्स it says it's an unadi pratyaya. Like that's one of the section in the Kridantas, unadi pratyayas. So it's like a rare, unique pratyaya. So by applying that, it becomes tikshna, tikshna. But it comes from tij. See, I never studied that how tikshna is formed. हम्म। But by just discussing, reading, studying, guessing, we come to know, okay, it must be this dhatu. I never thought of it. So it comes from tij dhatu, the word tikshna, tikshna buddhi. Okay. So tejate.
But when the meaning is Shama, forgiveness, then we apply Guptij Kidbhyasan. What was the vritti? If you can read that shloka. Gupo badhascha chintayam Kshamayam Tij सन Bhavet San. अवेत्ति Right. So in सन Shama Arth, the meaning of forgiveness, we apply San after Tij Dhatu. So Tij plus San, reduplication, and Chavargasya, again, Net Swarte Sani, Vishnu Janada, what was it? Anit San Kapilah, Ish Samipa Vishnu Janada, Anit San Kapilah, Chavargasya Kavargun Vishnu Padante, Vaishnavito Savarge, Ishvara and Yadav Matri Harikamnam, Ishvara Harimitra. So we get Titiksha. So Titiksha is a new dhatu now. Dhatu, what was that sutra? Bhusanantadya dhatava. And then Atmapadi dhatu, so Titikshate. Titikshate. He forgives. He sharpens. Okay, these next sutras are very important from 448, these 5, 6 sutras. So we'll do this in the next class. So anyhow, we completed the Parapada and we began Atmapada. So I think, yeah, by the end of this year, we should try to complete Akhyat Prakaranam. प्रभु जी This third वैसे chapter. यदि यदि अ, पहले हो जाए ये चैप्टर तो बढ़िया रहे, क्योंकि हमने भी स्टार्टेड इन सितंबर। प्रभु, आप इसका एक ब्रेकडाउन निकालो कि आप कब तक एग्ज्यूम कर रहे हो, कब खत्म होना चाहिए, कितने सूत्र बचे हैं पूरे आख्यात में। हम्म इसका एक ब्रेकडाउन निकाल के कुछ एक एक्सेल या कुछ एक बना के भेजिए कि अगर हम एक एक हफ्ते में अब इतने इतने सूत्र लेते हैं तो लेट्स से ये अक्टूबर या नवंबर तक खत्म हो जाए, जैसे भी। एक हम्म आप एक रफ लेआउट बनाइए इसका, ठीक क्योंकि है। हमारे पास एक रफ लेआउट होगा ना तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, तो हम फिर टारगेट करके हम खत्म कर लेंगे, वरना हम खींच भी सकते हैं। यस जी तो प्रभु दैट जी। वुड बी मोर अच्छा होगा वो। यस तो आप एक बार बना के इसको पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में, फिर हम उसके हिसाब से चल लेंगे। बट ऐसे बनाइएगा कि वो थोड़ा सूत्र भी देखिएगा, क्योंकि अब क्या होगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक सूत्र में कहीं कहीं धातु होंगे, हम्म तो आप एक बार गो थ्रू करते करते वो पूरा शेड्यूल बना लीजिए। मैं उस हिसाब से कि कितने ये फर्स्ट गाना सेकंड गाना इतने इतने रहते हैं इसके, मतलब ऐसे आप कर। अपने हिसाब से देख लीजिए जो प्रैक्टिकल भी हो और जो हम कर भी लें, ताकि हमारे पास भी शेड्यूल होगा तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है प्रभु जी। बस है ना। क्योंकि हमारे 200 सूत्र तो हो ही गए हैं लगभग इस चैप्टर के, अब देख लीजिए कितने बचे हैं और हम उसको कितने टाइम में कर सकते हैं। वीक वाइज बनाइएगा, वीक वाइज। ठीक है। बस। तो मतलब इस साल में तो कंप्लीट करना ही है, एंड इफ वी कैन स्टार्ट चैप्टर 4 बाय नवंबर दिसंबर, व्हाई नॉट, है ना, कर सकते हैं चैप्टर 4 स्टार्ट। यस कारक। The total sutras are 618 and we have completed 447. So 171 are remaining. ओके, आई थिंक देन अगर हम 60 सूत्र भी पकड़ते हैं एक महीने में, तो 3 महीने और मान लीजिए, है ना। Yes. अगर तो जून अभी चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड मान लीजिए, तो 60 सूत्र का मतलब है कि हर हफ्ते में हमें 15 सूत्र। 15। तो चलिए सितंबर है, अक्टूबर एंड तक भी अगर चलता है तो नॉट बैड। हम्म वैसे सितंबर ट्राई करना चाहिए, पर अगर एक थोड़ा हम गैप भी लेके चलते हैं, अक्टूबर एंड मैक्स मान के ले लेते हैं। हम्म वैसे हम सितंबर में करेंगे तो एक साल पूरा हो जाएगा, 1 ईयर पूरा ख्यात। यस और वो इतना तो लगता ही है, इसमें इतना लगता ही है। जी। ठीक है, ठीक है, तो आप फिर भी एक रफ बनाइए, तो हम्म, हम फिर उसके हिसाब से, आप नंबर ऑफ सूत्रस आप देख लीजिए, डिसाइड कि आपको कितने पढ़ने हैं। मैं फिर उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है अभी प्रभु। आपके ऊपर है। आप वीक वाइज बनाइए कि इस वीक हमें इतने सूत्र पढ़ने ही हैं, तो फिर वो हम्म मेरे को पढ़ाने ही होंगे और आपको पढ़ने होंगे। यस आप ऐसे कर लीजिए। पर आ, वादी सेक्शन खत्म होने के बाद एग्जाम है। ओके ठीक है प्रभु जी। हाँ, यस क्योंकि ये भुआदी का मेन चंक है, तो भुआदी पूरा खत्म होने के बाद एग्जाम होगा।
तो एग्जाम के लिए रखिएगा एक सेशन, और फिर कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेशंस। प्रभु जी, एक ऐसे हो सकता है कि एक थोड़ा झलक देने के लिए एक छोटा सा टेस्ट, और फिर बाद में प्रॉपर टेस्ट। नहीं नहीं, मॉक ऐसा टेस्ट। कुछ नहीं होगा। आप झलक टेस्ट नहीं होगा, सीधा आप प्रिपेयर कीजिए। नोटबुक एलएम से। है नोटबुक। नोटबुक एलएम, व्हाट इज नोटबुक एलएम? प्रो जेमिनी इज लाइक पूरा वेब का आता है आंसर। नोटबुक एलएम यानी हम जो उसको फीड करेंगे लाइक दिस पीडीएफ, तो उसी में से वो पूछेगा और एक्सप्लेन करेगा। प्रभु, आई ट्राइड, बट ये जो पीडीएफ है ना, ये अगर अगर हम कॉपी करते तो प्रॉपर इस कंटेंट्स कॉपी नहीं होते। जैसे जो इसमें आईएएसटी चीजें लिखी हुई हैं वो कॉपी नहीं होती अच्छी तरह। वो गलत बताता है फिर। आप नोटबुक एलएम के लिए बोल रहे हैं? हाँ, यस प्रभु जी, यस। नहीं, उसमें तो डायरेक्टली पीडीएफ अपलोड कर देनी है। पर ये पीडीएफ रीडेबल नहीं ना, मतलब इफ यू कॉपी द कंप्यूटर कैन नॉट रीड इट। नहीं, उनको बोल देने कि आईएसटी में नहीं, देवनागरी में दो मुझे। देवनागरी भी आप प्रभु जी, अगर आप इसे कॉपी करोगे ना, ये देवनागरी को, या फिर ये इसे नहीं और नहीं, पेस्ट नो, कर दो। देन व्हाट विल नोटबुक एलएम डू इफ यू गिव द पीडीएफ? आप क्या कराएंगे उनसे? पीडीएफ सेंड अपलोड करने का, अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि 448 सूत्र एक्सप्लेन करो, देन ही विल एक्सप्लेन। और अगर मुझे बोलना है कि आख्यात में से ये सूत्र से ये सूत्र तक एक क्विज दे दो 20 क्वेश्चंस का, तो वो क्विज दे देगा, वन लाइनर आंसर्स क्वेश्चंस वैसा। ओके। आप प्रभु जी, अहम बहवः प्रश्नाः सन्ति तदिते तदित् प्रकरणे। अस्तु। अ, गच्छतु। अहम व्हाट्सएप मध्ये प्रेषितवान्। व्हाट्सएप मध्ये। For exam, we will do Bhuvati Mishra Prakriya also. द एग्जाम। For exam, after completing Bhuvati Mishra Prakriya, or before that we will have आई एम थिंकिंग exam. आफ्टर कंप्लीटिंग द होल, आफ्टर कंप्लीटिंग मिश्र पद। यस प्रभु। दिस इज चिव प्रत्यय फ्रॉम तदित्। ओके। कठिनम् अस्ति। वेट वेट, वॉल्यूम 3। 154 पेज नंबर ऑफ। पेज नंबर 154। हाँ, पीडीएफ का थोड़ा आगे हो सकता है, तो 161 में भी पीडीएफ के अकॉर्डिंग। ये वाला? 161 होगा फिर, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा आगे होता है ना। मेरे पास बुक है ना, बुक बुक में 154। नहीं, बुक में 154 है। यस बोल। जी बताइए। चुई। साउंड्स लाइक च्यू। चुई। तो क्या अर्थ में है? टू मेक अ न्यू प्रातिपदिक whose meaning is a thing which was not before and it is now। ठीक है। अभूत तद्भावे, the status of that which was not there before, when only we remains in the subject। तो अशुक्लः शुक्लः संपद्यते, what is not white gains white, इति शुक्ली भवति। अशुक्लम शुक्लम संपद्यते तम करोति इति शुक्ली करोति। शुक्ली करोति शुक्ली भवति। ठीक है। शुक्ल सु च्वी, शुक्ली। च्वी का हर हो जाता है, बचता है सु। खैर, तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? तो काफी सरल है। रोज इसमें एक्सरसाइज पता ही नहीं लग रहा था क्या मतलब है। तो अहम मम वस्त्रम शुक्ली करोमि, मैं अपने वस्त्र को सफेद कर रहा हूँ बेसिकली।
हम्म। बेसिकली ये क्या है, शुक्लम करोमी की जगह शुक्ली करोमी हो गया। हम्म। मैं अपने वस्त्र को शुक्ल सफेद कर रहा हूं। मम वस्त्रम शुक्ली भविष्यति, मेरे वस्त्र सफेद हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे। इह बुद्धि मनसी एकीकृत्य मनसः इति निर्देशः। यहाँ पर यह बुद्धि और मन, दो चीज, बुद्धि और मन को एक करके मन कहा गया है, या मन ऐसा निर्देश किया गया है। बेसिकली मन शब्द से बुद्धि और मन दोनों को लिया गया है, ऐसा भाव है यहाँ। एक ही कृत्य मतलब एक ही मानकर या एक ही करके, एक ही कंसिडरिंग। कृत्य इज द शब्द। हाँ, एक ही कृत्य है ना यहाँ पे, एक और कृत्य, और उसमें ये चुई लग गया तो एक ही कृत्य। और देखिए कृत्य में लेप है, जी। क्योंकि एक ही काइंड ऑफ प्रीफिक्स हो गया तो एक ही कृत्य। ओके। फिर अनेका नाम पदानाम एक ही भवनम समासः, ये भी है कि अनेक शब्दों का या अनेक पदों का एकीकरण या एक ही भवनम मतलब एक ही साथ होना, उसको समास बोलते हैं। या एक करना, उसको समास बोलते हैं। देखिए यहाँ चुई में बताया है कि पहले वो ऐसा नहीं था पर अभी वो हम्म। है ना। अभूतपूर्व क्या था, आ, अभूत अभूत तद्भावे। अभूत तद्भावे, कि पूर्वे न आसीत इदानीम तो अस्ति, हम्म। पहले नहीं था अब है। तो अहम मायाम वशीकृत्य देहवान इव भवामि, मैं माया को वश में करके देहवान इव भवामि। देहवान मतलब देहवान जैसा बनूंगा, या देहवान जैसा बन गया। देहवान को कैसे बोलेंगे, देहवान देह वाला बन गया, देह वाला जैसा बन गया। यानी हाँ, अर्जुनम निमित्तीकृत्य भगवान आह, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा। निमित्तीकृत्य, निमित्त बनाकर कहा, निमित्त करके या निमित्त बनाकर। देह भस्मीभूत अदर्शनम गतः नष्टः उच्यते। तो शरीर भस्मीभूत हो गया, अर्थात शरीर राख बन गया। अब देखिए भूत यहाँ पे पास्ट टेंस है, त प्रत्यय, जी। किंतु उसमें भस्मी चुई लग गया, तो शरीर भस्म हो गया। और अदर्शनम गतः, वो अदृश्य हो गया। और उसको नष्ट उच्यते, उसको बोलते हैं कि वो नाश हो गया, उसका नष्ट हो गया। हम्म। वन सेकेंड। विष्णु सहस्त्र नाम प्रभु जी। तो इस प्रकार से ये चलता है, घटः नयनाभ्याम विषय भवति। तो अर्थ के हिसाब से देखना है कि क्या अर्थ है। ठीक है। प्रभु जी जैसे अष्ट 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 नंबर, घटः नयानां विषयी भवति। द घटा बाय द टू नेत्रस becomes विषयी thoughtful। बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द आईज। becomes the object। आंखों का विषय हो गया ना, देखने योग्य। घटः तो विषयीकृता भवति। becomes the becomes the विषय। the pod becomes the object of vision by the two eyes। and the ninth one विषयीकृता भवति becomes घटः the विषय कृतः, विषय becomes the कृतः, विषय। just the विषय कृतः।
घट घड़ा विषय बन गया। ठीक। विषय, हाँ विषय बन गया। ये और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, जब बड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें और क्लियर होगा कि पूरा क्या चल रहा है संदर्भ। अभी तो इन्होंने छोटे सेंटेंसेस दिए हैं। एंड प्रभु जी 12वां, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी अव्ययी भाव समासः। तो अव्यय शब्द तो हमें पता ही है। हम्म। तो ऐसा समास जहाँ पे अव्यय का भाव है। नॉट डिक्लाइन। भाविति भाविति भावो धातु अर्थ, भाव मतलब अव्यय का अर्थ है उसमें। भाव का अर्थ होता है अर्थ, मीनिंग। तो ऐसे समास जिसमें अव्यय का भाव है, अब अव्यय का अर्थ हो, तो उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो इस प्रकार से भूते न आसीत इदानीं तु अस्ति, वो मीनिंग लेके चलना है और फिर उसको उसी तरह से देखना है। एक्चुअली ये च्वी काफी कॉमन है, इवन हिंदी में भी काफी कॉमन है। शुद्धिकरण, है ना, जैसे हम्म। शुद्धिकरण। आप जहां पर भी बीच में, समास के बीच में ई देखेंगे, बड़ी ई, तो ये हम्म। प्राय च्वी प्रत्यय है। ठीक। तो आप प्रभु को थोड़ा बता रहे हैं कृदंत के बारे में, विष्णु सहस्त्रनाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक बार ही हुआ था। अब बात, अब मतलब पूरा 2 बार ही हुआ था, सच 2 बार। हम्म। 2 बार। तो आपका तद्दीत हो गया है, थोड़ा बचे? प्रभु जी ये तो आखिरी था। श्री। तो मतलब हो गया ना इस बुक के हिसाब से? हाँ, मैंने कर लिया था। अच्छा है। तो तद्धित भी फिर प्रभु जी को लेके जाइए धीरे धीरे, कई सारे प्रत्यय हैं इसमें। प्रभु जी एक्चुअली तो प्रभु वी पहले डिड। तद्धित में ही गए हैं। हाँ, डिसेंडेंट फर्स्ट पार्ट क्या है? अन अंग। अच्छा, आपने कृदंत कृदंत शुरू नहीं किया आपने? नहीं, प्रभु प्रभु पहले ही ले उतना गए। नहीं। चलिए देख लीजिए, पहले तद्धित कृदंत कृदंत तद्धित। पर कृदंत भी जरूरी है, आई थिंक तद्धित से ज्यादा जरूरी कृदंत है पहले। ओके। ठीक है, एक दो श्लोक पढ़ते हैं गीता भागवतम से। सेकंड चैप्टर, नो थर्ड चैप्टर। कः अध्यायः? द्वितीय। तृतीय। द्वितीय। द्वितीय। तृतीय। अ, चतुर्विंशति। श्लोक संख्या? चतुर्विंशति। चतुर्विंशति। आम। विंशति ना। चतुर्विंशति। अस्तु। आसीनः, अ, आसीनः सन् विषयङ्स् सन् विषङ्स् तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम् चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। So this is the shloka which says he was fully Krishna conscious. Kamat krodhat bhayat dveshat. You know that verse? Kamat krodhat bhayat dveshat. So he was krodhat, dveshat, bhayat. For bhaya actually Kansa's udharan is given. That out of fear he was fully Krishna conscious. So, mm, so saha kansaha, we have to take saha kansaha. आसीनः संविशन् तिष्ठन् भुञ्जानः
महीम पर्यटन ऋषिकेशम चिंतयानः जगत तन्मयम अपश्यत. So Kansa, while he was sitting, Asinah, while he was Sanvishan, Sanvishan is Samvish. Samvishan. What does it say in English? Synonyms? or lying on his bed. Sanvishan. Okay, lying down. Tishtan, standing. Bhunjanah, eating. Mahim Paryatan, while like wandering, walking on this planet, like on Earth, wherever he's walking. So while doing all these activities, he Rishikesham Chintayana. He was always thinking about Krishna, Rishikesh. All these are actually in continuous tense. Shanach and Shatri. And then Jagat Tanmayam Apashyad. And in this way, he saw Apashyad, this world, this Jagat, to be Tanmaya, to be Krishna Maya, to be Krishna conscious. Like everything he saw related to Krishna only. Tanmayam. Tatmaya, Tanmaya. So this is simple. While sitting, standing, lying, eating, walking, everywhere he was thinking of Krishna, Rishikesh, and in this way, everything became Krishna conscious to him. Uh, Jagat Tanmayam Apashyat. प्रभु जी आसीनः किं प्रत्यये प्रयुज्यते एतस्मिन्? Shanach, Shanach. आसीन ईराम कथं प्रयुज्यते This एतस्मिन्? is iti tu अनियमितः रूपः, irregular form. ओके एकेन सूत्रेण इतिवत् अभवत्. ओके. आमाम्. एंड प्रभु जी एतस्मिन् तन्मयं शब्द एतस्मिन् एतस्मिन् शब्दे कथं अभवत् तन्मयम्? तत् इति सर्वनाम कृष्णनाम मयट. मयट इति प्रत्यय कृष्णमय तन्मय तद्धिते चिंतयामि तद्धिते ओके अस्ति इसमें नहीं मयट हमने पढ़ा, प्रत्यय. इसमें नहीं था. तो मया होता है ना, मया मतलब मया भी वो ही होता है पोजेस करने के अर्थ में. ओके जैसे जैसे धनवान होता है ना, वैसे धनमय कृष्णमय. जैसे कृष्णवान कृष्णमय, वो एक ही भाव हो गया. जिसके पास वो है, वन हु पोजेसेस इट, तो उनके पास है, वहां पर माया प्रत्यय लगता है. बट जैसे दैट कृष्ण माया. प्रेममयी राधा, हम्म. लाइक कृष्ण प्रेममयी राधा, वन हु पोजेसेस द प्रेम ऑफ कृष्ण, तो माया ये प्रत्यय लग जाता है. एंड प्रभु जी बट तत्मय का इसका क्या अर्थ था? दैट पोजेस, possessing that what? तत् रेफर्स टू कृष्ण, तो इट्स बेसिकली कृष्ण मयम जगत. सो जगत विच इज इक्विप्ड और विच इज पोजेस्ड ऑफ कृष्ण, ऐसा जगत जो कृष्णमय है. यतः एतस्मिन् श्लोके ऋषिकेशं शब्दम् इति प्रयुज्यते, ततः आम, तो ऋषिकेश ततः ऋषिकेशमयम इति वक्तुं तभी शक्नोमि. तभी ये तत्मय यूज हुआ है. अगर इसमें मतलब अगर हम ऋषिकेश शब्द ना हो तो तत्मय का कोई अर्थ नहीं रहेगा, या इसका अलग ही अर्थ बन जाएगा?
आम आम ऋषिकेश है, तो हम उससे ही कनेक्ट कर रहे हैं कि तत् मतलब ऋषिकेशमय, ओके। क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर्वनाम है तो एक नाम होना जरूरी है, तो नाउन तो ऋषिकेश है। अब यहाँ पे देखिए, नाउन महिम को भी ले सकते हैं, पर जगत महिम में कोई अर्थ नहीं बन रहा। हम्म, तो यहाँ जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे ऋषिकेश मया ही लेना होगा। ठीक है। Got it. अपश्यत, अपश्यत रूप हमने बनाया है, दृशेर अपश्य, दृशेर पश्य शिवे। जी। ये भूतेश्वर का रूप है। जी, भूतेश्वर का पता लग गया। अपश्यत। भूतेश्वर परपद वन। ठीक है। आम आम। एंड प्रभु जी, समनिवेश विश इति वेषणे टू एंटर जनरली। इसका मुझे देखना पड़ेगा कि लाइंग डाउन इन्होंने कैसे अर्थ निकाला है, क्योंकि समवेश, उसका लिटरली वो अर्थ नहीं बैठ रहा है, मतलब लाइंग डाउन। तो वो कैसे अर्थ लिया, वो देखना होगा। ठीक है। वृषणम, व्हाट इज वृषणम है? तो ब्रह्मा भवश्च तत्र इत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिः वृषणमैडयन्। तो तत्र, तत्र कुत्र, मथुरा मंडले अथवा कारागृहे, है ना, कृष्ण जन्म स्थाने, कुछ भी कह सकते हैं तत्र में, वहां पर। तो तत्र ब्रह्मा, मुनि भी, नारदादिभिः, देवैः और सानुचरैः, लेट्स से सानुचरैः, देवैः साकं भवश्च तत्र एत्य गीर्भिः वृषणम ऐडयन्। तत्र हम पहले भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, अन्वय अपने हिसाब से चला सकते हैं, वी कैन डू द अन्वय लिटिल हियर एंड देयर। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भव भव भवानी है ना, भव भवानी, जय भवानी, जय शिवानी इन महाराष्ट्र। तो नॉर्थ इंडिया में पेट्रोटिज्म इतना बचा नहीं है, आई थिंक। बट महाराष्ट्र साइड में जाएंगे, ऐसा, दैट्स माय कंसिडरेशन, वहां पे इतना पक्का है। तो यस यस, हाँ। जो जो बिकॉज एक ऑफ भाव। पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना। ओके ओके। तो वहां पे जो ये भाव है पेट्रियटिज्म का, काफी स्ट्रांग भाव है। तो ब्रह्मा, भगवान शिव, सभी मुनियों के साथ, कौन कौन मुनि थे? नारद आदि, नारद आदि भी मुनि भी साकम, और सभी देवताओं के साथ। और वो देवता कैसे थे? सानुचरई देवे, वो देवता अपने अनुचरों के साथ। तो अपने अनुचरों के साथ देवतागण, सभी मुनियों के साथ। तो तो ऐसे ब्रह्मा और भगवान शिव तत्र एत्य, वहां पर आकर, कुत्र, मथुरा मंडले, जन्म स्थाने, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा था, उस स्थान पर आकर, एत्य, फिर गिर भी इति वाणी भी, अपने शब्दों से, वृषणम भगवान का नाम है यहाँ पे, तो भगवान का एडयन, इड स्तुतो, स्तुति की, वंदना की, इड स्तुतो। तो दिस इज बिकॉज दिस चैप्टर इज गर्भस्तुति, चैप्टर 2 इज गर्भस्तुति। तो ये यहाँ पर
गर्भ स्तुति अब आरंभ होगी। ठीक है। पूरी तो गिर धातु। भी जो शब्द, इड धातु, ओके, लिखा आपने, ठीक। इड स्तुतो। फिर भूतेश 1.3 परपद। वन अडयत आम 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 अडयत। ठीक है। प्रभु जी, एत्य कैसे बना? एत्य, इन ओके आप लिख रहे हैं, ये है ना? इन गताओ। हम्म। मामेति एति। अब प्रभु जी, यदि जन्म कर्म च में दिव्य यदि इसमें एति। जाना है तो इसमें अराइविंग लिखा हुआ है जैसे। हाँ तो तत्र एत्य, एत्य मतलब आकर, जाकर नहीं आकर। नित्यम, पर ये प्रभु जी इसमें इत कैसे आया? क्या आया? इत कैसे बन गया? इन का इत कैसे बन गया? वो तो कोई तुक से आया है, तुक पृथु, वो तुक देखना होगा। और इसका गोविंद हो गया क्योंकि प है ना। तो तो ए, ठीक। गोविंद होके ए हो गया एत्य। नित्य, ठीक है। नहीं, पर फिर भी प्रभु जी जैसे। वैसे इससे हम एक भाव ये भी दे सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि तत्र एत्य, वहां पर आकर। तो इसका मतलब सुखदेव गोस्वामी भी तो वहीं पर ही है, इन समाधि स्टेट। तो वो वहां पर है तो बोला है कि यहाँ पर आए या वहां पर आए। क्योंकि तत्र गत्वा ऐसे नहीं बोला कि वहां जाकर, वहां आकर बोला है। पर मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखना पड़ेगा टीकाकार क्या बोलते हैं एत्य शब्द पे। प्रभु जी, पर इसमें उपेंद्र कौन सा लगा है? जैसे पहले 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 उन्होंने बोला तत्र गत्वा। अच्छा उपेंद्र, ये एत्य रूप देखना होगा। एति गच्छति। डिक्शनरी में एत्य रूप अव्यय दिखा रहा ओके। है। इट सेज इनडिक्लाइनेबल एत्य। having come। ये देखें, इनडिक्लाइनेबल, हम्म। हैविंग कम नियर। भाई वैसे तो लप क्योंकि हो नहीं सकता। हाँ वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये उपसर्ग नहीं है, पर क्योंकि ये इनडिक्लाइनेबल है, अव्यय है, इसलिए एत्य हो गया। हम्म। प्रभु जी, वैसे अगर लप भी लगा तो तब भी इनडिक्लाइनेबल ही बनता। क्या प्रभु जी? फिर वैसे वैसे लेप लगा तो नहीं, पर अगर यदि लेप लगता भी है तो आई थिंक अव्यय बने। वो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि रूप इसी प्रकार से बनेगा जो डिजायर्ड फॉर्म है, इसलिए उन्होंने अव्यय ही दे दिया इसका। इत्वा, हम्म। क्योंकि अगर त्वा होगा तो त्वा में क प्रत्यय होता है, तो तो उसका गोविंद नहीं हो पाएगा, तो इत्वा।
इतना साउंड अच्छा नहीं कर रहा ना। हम्म। इसमें देखते हैं क्या दिया है। इसमें तो रूबी नहीं दिया। उस पे अष्टाध्यायी पे देख लेना। हम्म। वही प्रभु जी, इन वही क्या, खोलूंगा मैं। देखिए क्या बता रहे हैं अष्टाध्यायी पे। धातु पाठ। एंड धातु। बताओ। कृदंते ल्युट लट्य तो क्षत्रिय शान है। प्रभु जी, इसका प्रत्यय दिखा रहा है, प्रत्यय। वो लेफ्ट तो में। उन्होंने वो तो उपसर्ग लगा दिया ना प्रत्यय में तो। हाँ, एक मिनट। ऐसा। इत्वा। हाँ इत्वा हाँ, ऐसा। इत्वा दिखा है, इत्वा ठीक है, इत्वा ही होगा। और उसमें प्रत्यय ठीक है। इसमें ऐसे चेक करें प्रभु जी। नहीं वैसे इत्य- ये ठीक ठीक तो दिखा है। इत्य शब्द के चेक करूं। हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हरी हरी। इत्य नास्ति। यस प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। प्रभु जी, अष्टाध्यायी में एत्य लिखा था, पर उसने फाउंड नहीं किया। बाकी जेपीटी साहब एतत् वदतु। एतत् वदत्। नहीं वो ठीक ही है जो पहले दिखाया था, इत्वा और प्रत्यय उसी तरह से चलेंगे। एत्य तो इरेगुलर फॉर्म है, एत्य नहीं हो सकता, इसलिए वो रेगुलर। अव्यय है। ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आप वो बना लीजिए शेड्यूलिंग हम्म। पूरे चैप्टर 2 चैप्टर 3 की। जी प्रभु जी, हाँ। तो उसके हिसाब से फिर हम कंप्लीट करेंगे। तो हम एक्चुअली चैप्टर 3 के बाद भी वो शेड्यूलिंग आप बना सकते हो, लाइक चैप्टर 4। तो हम हम्म। उस हिसाब से एक शेड्यूल में भी आ जाएंगे यस प्रभु जी। सारे, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है प्रभु, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रभु जी, कृष्णा। नमो नमः। प्रणाम। हरे कृष्ण।